ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، علاقہ مرمت کے بزرگوں، نوجوان دوستوں، بھائیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کا جو وقت ہے وہ 23 سال لگے۔ بہت ہی مبارکباد ہیں وہ بچے جن کو آج علماء کرام کے ہاتھوں سے دستار پہنا دی جائے گی، اور اس کے بعد مبارکباد ہیں ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو گھروں سے نکالا۔ یہ بہت ہی کٹھن امتحان ہوتا ہے کہ جس وقت بچے کو گھر سے مدرسے کی طرف روانہ کیا جاتا ہے، ماں بھی رو رہی ہوتی ہے کیونکہ بچے کی یاد آئے گی، بہن بھی رو رہی ہے کہ بھائی کی یاد آئے گی، باپ بھی رو رہا ہے کہ نہ جانے مدرسے میں کس طریقے سے یہ رہے گا، اس کے کھانے کا کیسا نظم و ضبط ہوگا۔ وہ بچہ جو گھر کے اندر دن میں نہ جانے کتنے ہی مرتبہ ناشتہ کر لیتا تھا، اب ماں باپ کو فکر ہے کہ نہ جانے میرے بچے کو ناشتہ طریقے کا ملے گا یا نہیں۔ یہ سب امتحانات سے گزر کر یہ والدین اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالتے ہیں، وہ محض اس نیت سے ڈالتے ہیں، اس نیت کے ساتھ مدرسے میں ڈالتے ہیں کہ ہو نہ ہو کل قیامت کے دن یہ بچہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور کیوں نہ بنے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر میں ایک حافظ کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اے بچے، اے حافظ قرآن پڑھتا جا، اور اس طریقے سے پڑھ کہ جس طریقے سے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور تیری منزل وہاں پر ہے جہاں پر آخری آیت پر تو پہنچے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن کا مقام تو یہ ہے، افسوس ہے دنیا کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ حفاظ کرام سے بدزنی ہو جاتی ہے، علماء کرام سے بدزنی ہم لوگ کر ڈالتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا ایسے لوگوں کے متعلق جن کے اوپر جہنم کو اللہ نے واجب کر دیا ہوگا، کہہ دیا جائے گا کہ اے حافظ قرآن، تو ان 10 بندوں کو جن کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا گیا ہے، تو اگر ان کی سفارش کرتا ہے تو تیرے صدقے میں ان جہنمیوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ایک حافظ قرآن کو۔ اور اگر اس کا ایک محاسبہ کیا جائے کہ ہر گھر کے اندر ایک حافظ اگر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت
जन्नत में चली जाएगी। घर के अंदर एक हाफिज हो, हम मान के चलेंगे उस हाफिज के 2 माँ बाप, उसका एक भाई या 2 भाई, या इसी तरीके से उस हाफिज के 2-3 आगे बच्चे, उसकी बीवी, तो गोया घर के अंदर 10 अफराद मौजूद है और ये हाफिज उनमें 11वां फर्द मौजूद है। तो कल क़यामत के दिन क्या ये अपने घर वालों को जन्नत में ले जाएगा? यकीनन ले जाएगा। और इससे आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपने बच्चे को कलाम पाक हिफ्ज करवाया, याद करवाया, कल मैदान महशर में उसको सूरज से ज्यादा रोशन ताज पहना दिया जाएगा। कितने मुबारकबाद हैं इनके वालिदैन कि जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सनद दे रहे हैं, एक किस्म की सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुमने अपने बच्चे से जुदाई को कबूल कर लिया, बहन ने अपने भाई से जुदाई को कबूल कर लिया, माँ ने अपने लगते जिगर से जुदाई को कबूल कर लिया, लेकिन वालिदैन को ये एक किस्म का पैगाम दिया जा रहा है कि कल मैदान महशर में तुम्हें इस जुदाई का सिला दिया जाएगा। और वो सिला क्या होगा कि तुम्हारे सर के ऊपर रोशन ताज पहना दिया जाएगा। जब वालिदैन का ये मकाम है तो जाहिर सी बात है कि जिसके सीने के अंदर कुरान होगा, जिसके सीने के अंदर अल्लाह का महबूब कलाम होगा, उसका आलम तो कुछ अजीब ही हो सकता है। मेरे ईमानी भाइयों, हमने इरादे करने हैं, हमने ये नहीं देखना कि आज जितने अफराद यहाँ आए हुए हैं वो सब हसरत लिए यहाँ से जाएंगे कि काश मेरा बच्चा भी हिफ्ज़े कलामुल्लाह होता, आज उसके सर के ऊपर भी दस्तार पहना दी जा रही होती। हमें इरादा करना है कि आइंदा हम अपने बच्चों को मदरसे में डालेंगे। जिस तरीके से एक अजीब निजाम भी है, आज दुनियादारी है, दुनिया की तालीम के पीछे लगे हुए हैं। सुबह बच्चे को मकतब भेजने के लिए, इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं मकतब से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मदरसे में नहीं पढ़ाता, बल्कि मेरे 3-4 मकातिब चल रहे हैं। सुबह बच्चा उसी हालत में, उसके सर पे टोपी नहीं, उसके जिस्म पर लिबास अच्छा नहीं, और भेज दिया जाओ कुरान पढ़ने के लिए, जाओ कायदा पढ़ने के लिए। इसके बरअक्स हम देखें, स्कूल को बच्चे भेजा जा रहा है, माँ उठाती है, उठाकर उसको कहती है ये लीजिए ब्रश और टूथपेस्ट ले ले, अपने दांतों को साफ कर। उसके बाद माँ कंघी और तेल लेकर आ जाती है कि बेटा तू ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, तू दुनियावी तालीम हासिल करने जा रहा है, ये ले तू तेल लगा ले। और उसके बाद उसके चेहरे के ऊपर क्रीम मलती है और फिर अच्छे लिबास, जो सबसे बेहतरीन लिबास घर के अंदर होगा, उसको पहनाकर उसको एक ऐसी तालीम सिखाने के लिए भेजा जा रहा है जिसका हो सकता है दुनिया के अंदर फायदा हो, लेकिन आखिरत में उसका कोई नफा नहीं होने वाला। उसके लिए इतना बंद संवर कर भेजा जा रहा है। क्या कुरान इतना यतीम हो गया? क्या कुरान इतना बेबस हो गया? क्या कुरान इतना लावारिस हो गया कि हम उसको सीखने के लिए तैयारी नहीं करते? हम उसको सीखने के लिए यूं ही नींद वाली हालत में आ जाते हैं, और बस हमें तो सिर्फ फिर माहौल ये है कि सिर्फ महीना हो जाता है, वालिदैन असातिज़ा से राब्ता करते हैं, वो मदरसे की बात हो या मकतब की बात हो, मदरसे के उस्ताद से कहते हैं कि जनाब मेरा बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है। वो चाहते ये है, वालिदैन चाहते ये है कि मेरा बच्चा एक हफ्ते के अंदर स्कॉलर बन जाए। नहीं हो सकता। आप यहाँ आपके सामने उलमाए किराम मौजूद हैं, इनसे राब्ता करें, इनसे पूछें कि इस मकाम तक पहुँचने के लिए आपको कितना वक्त लगा। ये कहेंगे कि हमने रातों की नींदों को हराम कर डाला, दिन के सुकून को हराम कर डाला। मैं खुद इस बात का दावेदार हूँ कि हम दारुल में जिस वक्त तालीम हासिल कर रहे थे, इम्तिहान का वक्त था, हमें शाम को तकरार के लिए बैठे और फजर कब हो गई हमें खुद मालूम नहीं था। ये हकीकत है। आप मदारिस के हालात देखेंगे तो आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस वक्त दुनिया सोई पड़ी होती है, जिस वक्त सारी दुनिया आराम कर रही होती है, उस वक्त एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसके जबान से अभी अच्छे तरीके से अल्फाज अदा नहीं होते, वो तोतली जबान में यूं कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। आसमान से अल्लाह कोई अजाब डालने वाला होता है, बस्ती पर अजाब नाज़िल होने वाला होता है। नीचे से मदरसे का बच्चा, मकतब का बच्चा यूं कह रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ए अल्लाह जो
कलाम में पढ़ रहा हूँ, जिस कुरान की मैं तिलावत कर रहा हूँ, इसके किसी भी हर्फ के अंदर कोई शक नहीं है, अजाब नाजिल वो होने वाला होता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि मेरे फरिश्तों, यहाँ पर हाफिज कुरान मौजूद है, यहाँ पर कुरान की तिलावत करने वाले मौजूद हैं, इसलिए यहाँ से अजाब को हटा दिया जाए। ये है मदारिस की अहमियत। और फिर अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, आज के वक्त में भी कुछ लोग उठे जिन्होंने कुरान के अंदर तहरीफ करने की कोशिश की, कुरान के अल्फाज के अंदर तहरीफ करने की कोशिश की, लफ्जी तौर पर भी मानवी तौर पर भी तहरीफ करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए। क्यों नाकाम हुए? इसलिए कि अल्लाह ने खुद वादा दिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदियों, मैंने एक ऐसा जिक्र नाजिल किया है जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैंने खुद ली है। आप देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितनी शरीयतें दुनिया के अंदर नाजिल हुई, उनके अंदर तहरीफ कर दी गई, उनके अंदर रद्दो बदल कर दिया गया, लेकिन कुरान को अल्लाह ने कल क़यामत तक बाकी रखना है, इसलिए इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रखी है। कैसे हिफाजत हो सकेगी? किस तरीके से हिफाजत हो सकेगी? जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज दाखिल हुआ, अंग्रेज ने एक वक्त को भेजा कि जाओ हिंदुस्तान में देखो, वहां पर हम अपनी हुकूमत को किस तरह मुस्तहकम कर सकते हैं, किस तरह हम अपने वहां पर हुकूमत जमा सकते हैं। वो वक्त आया, उसने देखा कि यहाँ पर उलमा बड़ी कसीर तादाद के अंदर मौजूद है, हुफ़ाज़ कसीर तादाद के अंदर मौजूद है, मदारिस जहाँ पर तारीख बतलाती है कि हिंदुस्तान के मरकज दिल्ली के अंदर 1000 से ज़ायद मदारिस मौजूद थे। जब वो यहाँ पर आए, यहाँ से उन्होंने एक हिस्ट्री लिखी और अपने सरबराह को भेजी कि आप अपनी हुकूमत नहीं जमा सकते। उन्होंने कहा क्या मामला है? कहा कि अगर तुम हुकूमत जमाना चाहते हो, इन उलमा को काटना शुरू कर दो, इन उलमा को ज़िबा करना शुरू कर दो, इनकी मसाजिद को तहस नहस कर दो, इनके मदारिस को तहस नहस कर दो। फिर उलमा का वो हाल कर दिया गया, हुफ़ाज़ का वो हाल कर दिया गया कि खैबर से लेकर चांदनी चौक तक कोई ऐसा दरख्त खाली ना था जिस पर किसी हाफिज की गर्दन, किसी आलिम की गर्दन न लटकी हुई होती थी। फिर एक अंग्रेज आया, उसने मदरसे को जब मिसमार कर दिया, वहां के जो कुरान मौजूद था उनको जला दिया। फिर उसने कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे कुरान को खत्म कर दिया, मैंने अल्लाह के कलाम को खत्म कर दिया। एक कारी, एक कुरान का हाफिज उस्ताद बाहर निकला, उसने कहा कि अफसोस है तेरी इस जहन पर मुझे अफसोस है, तू क्या कुरान को खत्म करेगा। उसने एक छोटे से बच्चे को जो नाबीना था उसको मदरसे की दरसगाह से निकाला और कहा कि ए बेटे, तू अलिफ लाम मीम से पढ़ना शुरू कर। इस बच्चे ने शुरू किया, अलिफ लाम मीम पढ़ता चला जा रहा है। अंग्रेज हैरान हो गया, अंग्रेज परेशान हो गया कि हमने इतनी मेहनत कर दी, हमने इतने मदारिस को मिसमार कर दिया, लेकिन ये कैसे खत्म नहीं हुआ। उस हाफिज कुरान ने कहा कि तुम औलाद को खत्म कर सकते हो, कुरान के औलाद को मिटा सकते हो, लेकिन इस हाफिज कुरान के दिल के अंदर कुरान जो मौजूद है उसे कैसे निकाल सकोगे, उसे किस तरह मिटा सकोगे। इसलिए कि अल्लाह ने फैसला किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इसकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। दुनिया के सारे लोग मिलकर आ जाएं, सारी दुनिया के यहूदियत मिल जाए, ईसाईयत मिल जाए और इसके अलावा दुनिया भर के इल्हादी मिल जाए और वो कुरान को खत्म करना चाहे, नहीं कर सकते। माजी बईद के अंदर अंग्रेजों ने ये काम किया था, नाकाम होकर चले गए। और माजी करीब के अंदर हमारे हिंदुस्तान में वसीम रिजवी ने यह कोशिश की कि कुरान के अंदर से 26 आयत को निकालने की कोशिश की। अल्लाह ने इस तरीके से जलील किया कि मुर्तद और वो मुनकिर बन गया। ये अल्लाह तबारक व तआला के फैसले हैं। बहरहाल मैंने बात नहीं करनी थी, हमारे उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं खुद इस नीयत से यहाँ आया था कि मैं उलमाए किराम की बात सुनूंगा और इनकी बात पर अमल करके अपने ईमान को ताज़ा करूंगा। लेकिन जब हमें हुक्म मिल गया तो एक मशहूर
قول ہے عربی کا کہ الامر فوق الادب، کہ ادب جو ہے یہ حکم جو ہوتا ہے یہ ادب سے اوپر ہوا کرتا ہے. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے آ گیا. بہرحال مبارکباد ہیں یہ بچے، اور اس کے ساتھ میں مبارکباد ہیں ان کے اساتذہ، اور خصوصاً ان کے والدین کو مبارکباد ہے کہ جنہوں نے اتنی محنتیں کی، اتنی جدائیاں برداشت کی، لیکن یقین مانیے ان جدائیوں کا ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی اجر دے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے علماء کرام کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے اس دور دراز علاقے میں آئے، اور ہم کوشش یہ کریں، ہم نیت یہ کریں کہ جو کچھ یہاں پر علماء کرام کی زبانی ہم سنیں، ہم اس کو اپنے دامن میں سپیٹ کر چلے جائیں، تاکہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے اس حقیر انسان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام سامعین کو کہی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.